अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INQ। आज की जो अपडेट है इसमें मैं आपको बताने लगा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से सख्त हिदायत जारी कर दी गई हैं। 23 अगस्त 2026 तक तलीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तलीमी इदारे 24 अगस्त को खोले जाएंगे। पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये सख्त हिदायत जारी हैं, जैसा कि नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था जब सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में तातीलात हुई थी। उसी को मद्देनजर रखते हुए ये हिदायत जो हैं जारी कर दी गई हैं। मजीद भी मैं अपडेट बताने लगा हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इनके ओपिनियन है तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुँचती रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। चलते हैं एक प्रमोशन के नोटिफिकेशन की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 4 अगस्त 2026 का नोटिफिकेशन है। ये डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी पंजाब लाहौर की तरफ है। इसमें ये रिक्वेस्ट की गई है कि कंसोलिडेटिव वर्किंग पेपर्स जो हैं प्रमोशन के लिए मेल और फीमेल ऑफिसर को BS 19 के हवाले से, जो BS 19 की प्रमोशन हो रही है उसके हवाले से हैं। कंसिडरेशन प्रमोशन केसेस जो हैं प्रोविंशियल सिलेक्शन बोर्ड के जरिए जो हैं वो जनरल कैडर, जिसमें 1553 आइडेंटिफाइड पोस्ट हैं BS 19 की, जिसमें 553 ऑफिसर जो हैं वो वर्किंग कर रहे हैं एज 15 जुलाई 2026, लीविंग 1000 post vacant. The working papers covers only 436 officers up to seniority number 515. Consequently, even after consideration of these cases, 564 posts would remain vacant. In the female general cadre against 1197 identified post में जो है BS 19 की 658 लेडी ऑफिसर जो है वो वर्किंग कर रही थी एज ऑन 20 July 2026 out of 845 officers born on the notified seniority list, after excluding 119 retired officer and 68 officer promoted to BS 20 on 31 March 2026. Accordingly, 539 posts were vacant. The present working papers cover only 2 to 5 lady officers up to seniority number 241. Consequently, 314 posts would remain vacant even after consideration of these cases. Number 2, it is pertinent to mention that under paragraph 5 of the promotion policy 2010, all posts in BS 19 and above reserved for promotion are selection posts and are required to be filled through selection on merit. Furthermore, paragraph 7 of the policy provides for minimum panel or 3 eligible officer against each vacancy, subject to availability of eligible officer in the respective cadres. Despite यानी ये प्रमोशन के हवाले से नोटिफिकेशन है जिसमें सारी तफसील जो है वो बताई गई है। BS 19 के जो ऑफिसर उनकी प्रमोशन होने जा रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इसमें ये बताया गया कंप्लीट सर्विस डोजियर और प्रमोशन फाइल्स जो हैं तमाम रिमेनिंग मेल ऑफिसर्स की सीनियरिटी नंबर 1261 और फीमेल ऑफिसर की सीनियरिटी नंबर 1047 वर्किंग BS 18 में है एज पर द रिस्पेक्टिव नोटिफाइड सीनियरिटी लिस्ट, including their PR, seniority, particulars, integrity certificates, disciplinary position, qualification, experience, mandatory training, and all other requisite documents. So prepare करें consolidated supplementary working papers covering eligible male officers up to seniority number 788 and eligible female officer up to seniority number 550 who have completed the mandatory promotion linked training strictly in order of seniority and in accordance with the applicable service rules and the promotion policy 2010, और इंश्योर करवाएं कि no eligible officer of either cadre is omitted from the working papers without a clear and duty recorded justification. Submit the complete consolidated working papers to the department earliest without waiting any further correspondence. तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब चलते हैं मजीद अपडेट्स की तरफ। 22 रिजल्ट पंजाब के हवाले से कहा गया कि डॉटर फ्राम एजुकेटर पत्तोकी हैज टॉप पंजाब एंड नंबर 1 एंड ऑर्फन बॉय फ्राम सराइकी दानिश स्कूल इज नंबर 2 इन पंजाब. डॉटर फ्राम पंजाब स्कूल लाहौर इज नंबर 3 in Punjab. A mix of Saraiki and private schools have topped different boards. Madam CM team has ensured transparent exam. Alhamdulillah, protecting the result of their children at the all the best to our supreme students for the रिजल्ट टूडे. ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मोस्टली जो पोजीशन आई हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स की हैं. डिस्ट्रिक्ट बख्तर के अंदर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट स्कूल की पोजीशन आई है. इस तरह और भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो जो तनकीद की जा रही गवर्नमेंट स्कूल रिजल्ट नहीं देते, अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उनके एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त रहे हैं. और ये खबर जो है अच्छी और खुश आइन भी है
कि गवर्नमेंट स्कूल वाकई सही मानों में गवर्नमेंट स्कूल हैं और टीचर जो है वो वर्क कर रहे हैं। अब चलते हैं एक और अपडेट की तरफ। ये जवाब देता है कि टोबा टेक सिंह के स्कूलों में केयर गिवर्स की तैनाती का आगाज साल 2015 में शुरू हुआ और इमसाल भी तैनाती की गई। केयर गिवर की भर्ती के लिए कम अज कम तलीमी काबिलियत मैट्रिक है मुकर्रर है। टोबा टेक सिंह के स्कूलों में तैनात केयर गिवर्स के नाम, तैनाती की तारीख, अनेक्स्चर ऐसा। केयर गिवर्स का मुआवजा बामुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन के सर्कुलर मोरखा 26/2023 के तहत 8,000 रुपया माहाना मुकर्रर है जनाब चेयरमैन। और इसके बाद जनाब चेयरमैन, इसके दूसरे हिस्से की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूं। ये मुआवजा दिया जा रहा है 8,000 रुपया, जो बच्चों को जिन्होंने देखभाल करनी है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुआवजा अर्ली चाइल्ड की एजुकेशन देने वालों को दिया जाता है और यहां स्वीपर की तनख्वाह मिनिमम वेज है 40,000। झाड़ू देने वाला जिसने कोई स्कूल का मुंह नहीं देखा उसकी तनख्वाह है 40,000 और ये 80% बच्चियां जो हैं MA MSc हैं इसमें और उसकी तनख्वाह है 8,000। और ये जो मिनिमम वेज का कानून है जो इस असेंबली ने पास किया, ये उसको भी वायलेट कर रहा है महकमा। 8,000 रुपया रिक्शे का किराया लगता होगा उस बच्ची का, शायद वो जब घर से स्कूल तक आती होगी। चेयरमैन जनाब, अब ये एक तो आप एक कानून वायलेट कर रहे हैं, फिर एक ऐसा तबका जो पता नहीं किस मुश्किलात से गुजर के उनके वालिदैन ने उन्हें पढ़ाया होगा, कोई ख्वाब देखे होंगे, कोई आस लगाई होगी कि कल ये कभी मुलाजमत पे हमारा सहारा बनेंगे, अपने घर के किचन चलाने में मददगार और मुआवन होंगे। और हम ये सलूक क्या कर रहे हैं यहां, जब फिर ये लोग क्यों इस बात पे वबेला नहीं करेंगे, हमारी तनख्वाहों पे फिर क्यों इतराज नहीं करेंगे, हमारे सेक्रेटरीज की तनख्वाहों पे फिर क्यों इतराज नहीं करेंगे, जिनके लाखों रुपए के माहाना बिल बन जाते हैं उन पे फिर ये इतराज क्यों नहीं करेंगे। लोग मुतनफ्फर निजाम से, सियासत से क्यों नहीं होंगे। अगर ये सलूक हम करेंगे, हम अपने बनाए गए कवानीन की धज्जियां उड़ाएंगे, तो फिर वो बजा लोग इस पे एतराज करेंगे। क्या जवाब है और किस 2-3 मरतबा ये पहले मौजू यहां डिस्कस हो चुका है, लेकिन इस पे किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी इसकी कि इनकी तरफ भी, इस तबके की तरफ भी देख लें। ये बड़ा तीर मारते हैं कि जी हमने इतनी असामियां खत्म कर दी हैं, कोई फलाह के काम की भी बात कर लें। मैं एक तो मेरे पास मेरा ख्याल दर्जनों मैसेज होंगे, मैंने पहले भी यही जवाब दिया था। जो रेगुलर टीचर है वो भी 5 दिन। सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रेफर कर दिया कमेटी में, इसमें तफसील से बात वहां पे। बहुत मेहरबानी।